परिवार जो तू देखदा चले नाही तेरे नाल, which means worldly relations are temporary. Wealth, family, status, everything is temporary. The one thing that goes with you when you die is just the naam, Nanak naam. अब चलिए आपको ले चलते हैं towards Quebec City और आके देखते हैं what all we saw. Here you go. That Quebec is the capital of the province. This is why we have the legislature in Quebec City. That is the Parliament building in front of you, built in the late 1800s. On the front wall, on each side, you can see some statues. Those statues are just a paying tribute to those who had an important role in New France history. Can be some explorers. Take a look on the left side on the top. It is written Champlain. He was the founder of Quebec City. On the right side, on the same level, it is written Maisonneuve. He was the founder of Montreal. In the middle, it is written Jacques Cartier, the one who discovered this country 1 century earlier in 1534. And of course, we are also paying tribute to the Catholic priests and nuns. Those were coming here in the early years of the French colony. Up the tower, there is a beautiful flag. That flag is the pride of the French Quebecers, like me, who are staying in this province. It is the Quebec's province flag, and the meaning of our flag is just like this. The blue color, as you know, is the color of the monarchy. It means that when the French were coming here for the first time, there was a monarchy in France. The white cross on our flag is just saying that we are mostly Christians in this province, and on each corner of the flag, it is the symbol of France. This country, Canada, was established as a country in 1867. In the early years of the country, there was only 4 provinces. Quebec was the only French province. Quebec was part of those 4. Today in Canada, we have 10 provinces and 3 territories in the north. The province of Quebec is still considered as the only French province. A province in this country is like a state in the United States. Each province has its own legislature, its own provincial election, and there is also, we are taking our own decisions like our neighbors, Ontario, and the rest of the provinces. So each province is independent to the others. Take a look on the other side now. So I was telling you that Quebec is a fortified city. You will see a lot of forts and walls in this city. And you can see from the distance the wall over there. That wall has been built by the French because they were expecting the British to come here, trying to take over the new territory that they just discovered. And the wall rings the old part of Quebec like this, like a circle for a distance of 4.6 kilometers long, 3.8 miles long. So it means that in the next few minutes, when we'll be on the other side of that wall, it is like that we'll be inside of a fort. Everywhere you'll go on foot, on a bus, there is a wall somewhere. Don't forget this. It's always the same one. Quebec City is not as huge as Montreal or Toronto or New York. We don't have a lot of skyscrapers in Quebec. And that one over there with the Quebec's flag on the top is the only skyscraper inside the walled city, inside the fort. If you're the building is mostly for businesses, but the 2 top floors, because the premier of Quebec, the political leader of this province, has his apartment of function on the 2 top floors. So from the distance, you can feel the building has the same architecture than a very important one in New York City. 6 times smaller, of course. I'm speaking of the Empire State Building, same architecture, same architect worked on both, but that one was inaugurated first in 1929. So once again, I'm giving you a few more minutes here, taking pictures, and for 3 or 4 minutes, it's fine.
and please walk back to the bus when you're done. Ceux qui parlent français. एंड फाइनली यहाँ से हमारा सफ़र हुआ टू सी क्यूबेक ऑन फुट एंड दैट्स व्हाट वी डिड अ कैब एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी. सो फाइनली हमें सीट मिल गई. यूजुअली ये जगह बिल्कुल पैक्ड रहती है बट फाइनली हमें पहुंचते ही जगह मिल गई थी. मे बी वी वर देयर ऑन टाइम एंड नाउ येस वी आर डिसाइडिंग ऑन टू कि क्या खाना है. अमन इज़ लुकिंग एट मी कि वाई शी इज़ रिकॉर्डिंग मी टेलिंग देम द थिंग्स. तब तक अमन का चाय लाटे आ चुका है और मेरी कॉफ़ी आ चुकी है. टिल द टाइम वी डिसाइड व्हाट टू हैव. Aman has already decided something salmon and let's see what I'll be ordering. अमन की चाय लाटे देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि ओ गॉड कितनी ज़्यादा चाय दी है इन्होंने. बट जिस ठंड से हम आए हैं वी फील लाइक वी विल हैव इट. वी विल बी इंजॉइंग इट. सो लेट्स बिगिन. आर्किटेक्चर मुझे इस जगह का बहुत अच्छा लगा. बहुत पुराना आर्किटेक्चर है जिस तरह का पिक्चर में वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है. दैट ओल्ड टील कलर्स. जैसे अब आजकल के टाइम पे एस्थेटिक में हम लाइट टील यूज़ करते हैं तो पुराने टाइम में कैसे डार्क टील यूज़ किया जाता था. इवन इन आवर कंट्री आई हैव सीन मैनी प्लेसेस वेयर इस तरह की आर्किटेक्चर और इस तरह के रिच डार्क कलर्स यूज़ किए गए हैं. फ्लोरल पैटर्न्स और डायगनल्स. इवन बाकी जो एरिया है कैफ़े का दैट्स ऑल्सो वुडन बेस्ड एंड विद टिंटेड ग्लासेस. जैसे ग्लासेस हमने अपनी कंट्री में भी देखे हैं. सो अमन यहाँ पे बता रहा था दैट दिस प्लेस इज़ ओन्ड बाय वीमेन एंड वही इसको चलाती हैं. एंड इसके साथ अमन वॉज सेलिंग कि लास्ट टाइम जब अमन आया था ही हैड बेगल एंड ऑल हेयर जो कि ही लाइक्ड इट वेरी मच. बट दिस टाइम ही वॉज लाइक दैट हम पहले उतरते यहीं पे जाएंगे ब्रेकफास्ट या ब्रंच करने. अभी हमारा ब्रंच ही हो चुका है. सो ही वांटेड कि हम सबसे पहले यहीं जाएं. ही वॉज एक्साइटेड अबाउट दिस प्लेस और इसकी एक्साइटमेंट ने मेरे अंदर की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया था. इन्हें वॉज लाफिंग दैट लास्ट टाइम तो अच्छा लगा था, इस बार पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा या कैसा रहेगा. सो येस हमने ऑर्डर कर चुके हैं. हमारी ड्रिंक्स तो आ चुकी हैं बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर आवर बेगल एंड look at what kind of interest he's showing in explaining everything. This place is very nice. It is jam packed. हमें seats मिल गई थी और all the things because he was literally excited for this place and for the bagels because Quebec is known for its freshly baked bagels and we both were excited to taste it. So this is what हमने ऑर्डर किया. मेरा वाला जो है इट्स अलोंग विद एग चीज़ फ्रूट्स एंड होममेड जैम इनका जो मैं टेस्ट करना चाहूँगी विद सेसमे. एंड अमन का स्मोक सामन वाला है जो थोड़ा सा सामन तो ऑफकोर्स मैं भी टेस्ट करूँगी. प्लेटिंग ऑब्वियसली बहुत अच्छी है. अमन का चाय लाटा देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा है. प्लेटिंग बहुत अच्छी है. इट्स लुकिंग नाइस, नाइसली प्लेस्ड. बस अब स्टार्ट करते हैं हम अपना खाना. सो फाइनली बेगल्स खा के हम निकल चुके थे एंड जो एक्साइटमेंट अमन ने क्रिएट की थी दैट सर्व्ड इट्स पार्ट. दैट सब कुछ बहुत ही फ्रेशली बेक्ड, फ्रेशली कुक्ड एंड इवन फ्रूट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी. वी हैड अ गुड ब्रांच टुडे एंड एक बार आपकी पेट पूजा हो जाए देन यू आर रेडी टू गो अहेड विद रेस्ट ऑफ द थिंग्स. और जो आगे के प्लान्स आपने किए हैं हमने सोचा ऊबर करके वापस जाने का कोई सेंस नहीं बनता टूवर्ड्स फेयरमॉन्ट रॉयल होटल जिस तरफ हम अभी जा रहे हैं. वॉक करके क्यों ना जाया जाए सो दैट वी कैन एक्सप्लोर द प्लेस ऑल्सो. डायरेक्ट ऊबर में जाएंगे तो इतना पता नहीं चलेगा दैट हाउ द बिल्डिंग्स आर, हाउ द प्लेसेस लुक और एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे. तो वी बोथ डिसाइडेड कि हमारे पास टाइम है
तो why not to walk towards the hotel and see the market around. छुट्टी की वजह से बहुत सारी शॉप्स तो खुली नहीं थी, बट जो कुछ आधी खुली थी वो देखी, और जो आगे पीछे आर्किटेक्चर, ये छोटी छोटी शॉप्स जो एटलीस्ट हम बाहर से ही देख सकें, वी जस्ट वांटेड टू सी ऑल ऑफ देम एंड एक्सप्लोर द थिंग्स अराउंड. और काफ़ी नाइसली छोटा सा टाउन है, क्यूट सा, बट बर्फ़ बहुत पड़ी हुई थी. एंड जहाँ हम चल रहे हैं, इफ़ यू कैन सी, कुछ कुछ जगह पे बहुत ही फ्रीजिंग ब्लैक आइस भी थी, which was which was little risky to walk on, but हम दोनों ने अपने स्नो शूज़ पहने हुए थे, so we were quite comfortable with our jackets, our mufflers, our gloves and everything, सब कुछ. एंड अमन का अपना बैकपैक जिसमें हमने कुछ थोड़ा बहुत खाने का चीज़ें रखी दी थी, पानी वानी एंड ऑल दैट, सो दैट इफ़ कभी बीच में हमें कहीं रुकना हुआ तो we can just grab that thing and eat it and go ahead. but जो छोटे छोटे आपके कैफ़े कॉफ़ी शॉप्स कहीं खुले थे, वहाँ से we were thinking of have something warm beverage, या यहाँ का मेपल टॉफ़ी जो स्नो पे बनती है वो ट्राई करने का हमने सोचा है. सो लेट्स सी वहाँ जाके हमें वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 25th है, सो कैसा रहेगा. बट बोला जाता है जो क्यूबिक सिटी का ऊपर वाला एरिया है वो क्रिसमस में बहुत ही डेकोरेटेड होता है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वहाँ पे खुले होते हैं, एंड इट्स बीन नाइसली प्लेस्ड. सो वहाँ पे जाके अब पता चलता है अब आगे क्या होगा. तब तक देखते हैं इस क्यूबेक का सुंदर सा नज़ारा और गाड़ी चलते आ हैं गई. आगे की तरफ. सो ये हम पहुंच गए जी उस एरिया पे जहाँ पे फोर्टिफिकेशन ऑफ क्यूबिक हुई है. मतलब चारों तरफ आपको नजर आएगा वॉल, और साथ में सामने ये गेट. आई मीन ये चार बोल रहे थे ना, कि चार होते हैं ना, चार हैं. नहीं, बहुत सारे हैं शायद, बहुत सारे हैं. बट ये सर्कुलर में 4 किलोमीटर की वॉल है. रेडियस में. सो अब डिफरेंट से मॉन्यूमेंट, स्टैच्यूज. ओ माय गॉड, यहाँ गांधी का मॉन्यूमेंट भी है. ओके, बहुत ही अलग से रखा हुआ है. और ये साइक्लेबल बिन. और ये हम फोर्ट का जो एक गेट है, जैसे बताया जाता है, देयर आर सो मेनी ऑफ देम. एंटर करके ओल्ड क्यूबिक सिटी एंटर कर रहे हैं. मार्केट दिख रहे हैं. हम यहाँ जाके हमें मतलब लिटरली लोग दिखाई दिए. अदरवाइज ऊपर की तरफ देवर लाइक बड़े हैंडफुल से लोग थे जो दिख रहे थे. बट यहाँ पे शायद मार्केट होने की वजह से ये ऐसे लोग हैं. कुछ हिस्ट्री बताई जा रही है. ये कुछ है अमन, मैप ये में दिखाया हुआ है नहीं नहीं ये कुछ है, मैं बोल रही हूँ. यही है, वॉल स्लोप ही से है. बनी हुई है. ओके ओके, क्यूबिक का साइनेज यार बच्चा क्लिक कर सकते हैं. यस. सो ओके, सो फाइनली हम जो ओल्ड क्यूबेक का मेन स्ट्रीट है या डाउनटाउन काइंड ऑफ अ मार्केट है, हम वहाँ जा रहे हैं. जस्ट एंटर्ड. सो यहाँ पे बिल्कुल शो दिस साइड मार्केट दिखाते हो जो यहाँ पे बिल्कुल रंग बिरंगी बिल्डिंग्स ये हैं एंड ऑल. कलरफुल. अभी विंटर की वजह से नीचे भी वाइट हो चुका है, वाइट एंड ब्लैक आइस काइंड. बट या, दिस इज द इम्पोर्टेंट ओल्ड फ्रेंच स्टाइल आर्किटेक्चर है यहाँ का. लेट्स सी, यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हैं. आई थिंक ऊपर लोग रह भी रहे हैं लोग, या मे बी एयरबीएनबी काइंड ऑफ अ थिंग. बट यस, नीचे मोस्टली ऐसी छोटी छोटी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज वगैरह ही हैं मोस्टली. सो यू कैन सी बोथ साइड. यहाँ पे भी आप देख सकते हो
Okay, Careful. you have to be very careful while walking. Snow time में see कितना अच्छा लग रहा है. Yeah, yes, this is Bagels de looking nice. France. Nice. Yeah. So yes, जैसे मैं बोल रहा था, so नीचे रेस्टोरेंट्स भी हैं, होटल्स भी हैं यहाँ पे, डिफरेंट होटल्स, और वेरी क्यूट सा आर्किटेक्चर है यहाँ का, कलरफुल, डिफरेंट ही वाइब दे रहा है. नॉट दैट मच क्राउडेड, मे बी बिकॉज हॉलीडे है. या यू कैन सी आइस कवर्ड प्लांट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, लोग चल रहे हैं, सोवेनियर्स शॉप्स एंड ऑल. आई लाइक इट. ये वही वॉल यू कैन सी, क्योंकि एज पर गाइड, सो ये वॉल जो है ये पूरे ओल्ड क्यूबेक सिटी का अराउंड है. इट वाज मेड बाय फ्रेंच पीपल टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स से बचने के लिए उन्होंने मतलब अपने आप को फोर्टिफाई कर लिया था. एंड लेटर प्लान्स ऑफ अब्राहम में यहाँ पे जहाँ उनकी आपस में लड़ाई हुई थी, और इवन दो फ्रेंच वाले वर नॉट अ प्रोफेशनल वन, बट Oldest home, स्टिल oldest they were house they is no they old, won. no longer Yeah, the oldest. Means people don't say now. They said that they have converted it into some commercial building, kind of. yeah. So as you can see, हम जैसे जैसे फेयरमाउंट के पास आ रहे हैं, यहाँ पे चहल पहल बहुत दिख रही है, ज़्यादा लोग दिखेंगे आपको. एंड नाउ इवन more colorful cafes and buildings. Yeah, you can see. Yeah, souvenir shops, छोटे छोटे souvenirs. Yeah, you can see. आ जाओ, इस तरफ आ जाओ. So हम finally फेयरमाउंट के सामने आ गए हैं. So as you can see the iconic Fairmount Hotel here. उसके सामने का मार्केट, यहाँ पे क्रिसमस वाइब चल रही है. इन्होंने एक स्मॉल सेंटा विलेज टाइप बनाया हुआ है बच्चों के लिए. Yeah, looks really nice. आई थिंक बाहर जाने से पहले हम एक बार ही ट्राई करते हैं अंदर जा सकें होटल के. सो लेट्स ट्राई दैट एंड सी इफ दैट्स पॉसिबल, एंड लेट्स शो यू दैट फर्स्ट एंड देन विल गो टू द फ्रंट. लेट्स सी. होटल के अंदर जा सकते हैं या नहीं, या क्या प्रोसेस है, कोई टिकट्स हैं, या क्या है. एक्सेस रिजर्व फॉर होटल गेस्ट. लेट्स सी. या लुक्स नाइस. आ जाओ, जाओ, जाओ. So let's go inside and see क्या है option, if we can see something. Yeah, sure. Nice Christmas vibe. No problem at all. So
अंदर जो इन्होंने क्रिसमस का बनाया हुआ है थैंक यू सो कासल मच। टाइप। होटल फेयरमॉन्ट से निकलने के बाद स्लेजिंग की लाइन देखी हमने, ओ माय गॉड। कुछ लोग तो, सुनने में आया था कि 4 घंटे लगे थे उनको टू वेट, मुझे लगता है वही एंड क्रूज है जो वो हमने इतना फेमस है कि देखी थी पीपल जाते वांटेड हुए। टू वेट फॉर दैट। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमें गाड़ी में वापस जाना था। अब हमारा सफ़र क्यूबेक सिटी का हो रहा था ख़त्म। अब वहाँ पहुँचते ही हम लोग खाने की तरफ भागे। ऑफ कोर्स गाड़ी पार्किंग में थी, पार्किंग से लेकर वी लेफ्ट, एंड दिस इज़ ताज महल होटल। पंजाबी रेस्टोरेंट ही था, एंड ऑथेंटिक इंडियन फूड मिल रहा था यहाँ पे। बाहर बहुत अच्छी खासी बर्फ़ लगी हुई थी। विंडो साइड की टेबल वी गॉट एट द राइट स्पॉट, वो देखते हुए कुछ पिक्चर्स वीडियोस क्लिक करके वी जस्ट स्टार्टेड आवर फूड। फूड वाज सर्व्ड वेरी नाइसली। हमने सब कुछ वेजिटेरियन ही ऑर्डर किया था। दिस इज़ वेजिटेबल बिरयानी। दिखने में आई डोंट नो वीडियो जस्टिफाई कर रही है नहीं, बट वाज लिटरली वेरी टेस्टी एंड यमी। फ़िश, ओ सॉरी, वेजिटेरियन बिरयानी बनाई थी, बट हमने फ़िश साथ मंगाई थी। रोटियाँ इतनी इतनी सॉफ्ट रोटियाँ थी, माय गुडनेस। फुल्के इतने सॉफ्ट। हमने पेट भर के खाना खाया एक्चुअली, एंड द अरोमा वाज सो ऑथेंटिक। द सर्वर्स, the people who prepared it, the cook, and everybody around were literally very nice. Of course हमने गार्लिक नान मंगाए थे, है ना। अब एक बार जब आप दिल्ली रह के आते हो तो फिर आप गार्लिक नान के फ़ैन हो जाते हो। तो अमन वॉज लिटरली एक्साइटेड, एंड ऑफ कोर्स मैं भी एक्साइटेड थी। और बाहर का नज़ारा हमारे सामने, दैट वाज द राइट स्पॉट फॉर the amazing yummy dinner to have. And then we started a little giddy around the city. डाउनटाउन के पास ही हमारा एयरबीएनबी था, बट टुवर्ड्स द मेन हब बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग आए हुए थे टू हैव दैट फील ऑफ इट। थोड़ा सा गेड़ी मारते हुए हम वाइट टावर की तरफ गए, और वहाँ पे हमने देखा ट्रिब्यूट टू दी सेलर्स का एक, इट वाज अ मॉन्यूमेंट एंड प्लेस वेयर, जहाँ पे मिसाइल्स रखी हुई थी जो पुराने टाइम पे वॉर के लिए यूज़ की गई थी। स्नो की वजह से बहुत नीचे की तरफ तो जा नहीं पाए, बट दैट मॉन्यूमेंट एंड दैट place was worth watching. Ferris wheel and all that, सब चीज़ें बहुत ही विंटर वंडरलैंड जैसी लग रही थी लिटरली। हाँ ठीक है, बाकी एक्सपीरियंसेस के साथ ये विंटर वंडरलैंड का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा। Everybody, we thank you for watching our videos, staying with us. आपके like, share and subscribe हमें motivation देगा to keep going on with that, and we will try to bring more of good videos so that you can stay tuned with us. Thank you.